Hello, students. I hope you all are fit and fine. Today we are going to start writing work of class 7th, chapter 2nd, history, and the chapter is New Kings and Kingdoms. Okay, students, as you know, we have to write today from Let's Do. Okay, yesterday we have done these question answer, question 1 to question 10. Okay, from chapter 2, New Kings and Kingdoms. Today we will start from question number 11. Let's do. All right, students, so are you ready all? Okay, so start. Write question number 11. Okay, so write down question number 11. Question 11. And what's the question, students? I am reading here question number 11. As you can see, compare the temple shown in this chapter with any present day temple in your neighborhood, highlighting any similarities and differences that you notice. Alright students, so what you have to do, students, हमें क्या करना है, इस पार्ट में दिखाए गए मंदिर, हमने इस पार्ट में बहुत सारे मंदिर देखे, ओके, डिफरेंट डेंसिटीज़ के मंदिर देखे, एम्पायर के मंदिर देखे, तो जो इस चैप्टर में मंदिर बताए गए हैं हमें उनका कंपैरिजन अभी मौजूद में मंदिर से करना है, प्रेजेंट डे टेम्पल से उनका कंपैरिजन करना है अपने आसपास पर जो मंदिर बने हुए हैं. ओके, एंड हाईलाइटिंग एनी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दैट यू नोटिस, और हमें जो असमानताएं और अंतर या फिर कुछ सिमिलरिटी, जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें हमें बताना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, सो मैनी टेम्पल्स इन आवर neighborhood, so we have to compare with our neighborhood's temple or with present day temples with the temples which is shown in this chapter, New Kings and Kingdoms. All right students, so let's start. So question number 11, and the question is compare, write down, compare the temple shown, compare the temple shown, SHOW, and compare the temple shown in this chapter, in this chapter, CHAPTR, in this chapter with any present day temple, with any present day temple, with any present day temple in your neighborhood, in your NEIGHBOURHOOD, neighborhood, highlighting, 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 highlighting. Okay, it's L, students, HIGHLIGHTING, highlighting any similarities, any similarities. Okay, any similarities means समानताएं and differences. Okay, DIFFERENCES, and differences that you notice. Okay, that you notice. All right, so compare the temple shown in this chapter. Which chapter? This one, New Kings and Kingdoms, chapter 2nd, with any present day temple in your neighborhood, highlighting any similarities and differences that you notice. All right, so write down answer. So students, as you know, we have to compare with modern days temple, present day temples. Okay, so students, as you know, now present day temples
if we will talk about the shape of present day temple, so it's mostly triangular in shape with apex and base. Okay, and this time no images on the walls. ओके, कंपैरिजन देन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में क्या होता था, दीवारों पर कार्व किए जाते थे देवी देवताओं की मूर्तियों को, और देवी देवताओं की मूर्तियां ही दीवारों पर लगाई जाती थी. ओके, लेकिन प्रेजेंट डे में ऐसा नहीं है. नो इमेजेस ऑन द वॉल्स इन प्रेजेंट डे टेम्पल्स एंड नो सच सेटलमेंट्स एंड लैंड नियर बाई. और अब क्या है, पहले जो बड़े बड़े मंदिर प्राचीन समय में बनाए जाते थे, तो उन मंदिरों में क्या होता था, उसके आसपास काफ़ी हैबिटेशन होती थी. ओके, बहुत सारी हैबिटेशंस होती थी, बहुत सारे लोग रहते थे उसमें, पुरोहित वर्ग, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी रहते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. ओके, एंड वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है, वो तो अभी भी प्रेजेंट में होती है. और वो अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. ओके, लेट्स स्टार्ट टू राइट. We will write here this answer. Comparison, COMPARISON, comparison between, BETWEEN, comparison between temples, TEMPLES. Okay, comparison between temples shown in the chapter. Temple shown in the chapter, in the chapter, CHAPTER, in the chapter, and present day temples, and present day temples, TEMPLES, and present day temples in our neighborhood, in our neighbor, NEIGHBOURHOOD. Okay, in our neighborhood. All right, so comparison between temples shown in the chapter and present day temples in our neighborhood. Okay, so students, we will draw here two columns, one for temples shown in the chapter and second one temples in our neighborhood or temples in present day. Okay, so write down temples shown. First column is, we can highlight this line, TEMPLES, temples, SHOWN, shown in the chapter. Okay, in the chapter, temple shown in the chapter. And second one, temples in our neighborhood, NEIGHBOURHOOD, neighborhood. Okay, so we have to draw two highlighted two columns, one for temples shown in the chapter and second one for temples in our neighborhood. So students, if we will see in this chapter, so different types of shapes, pyramidal shapes, okay, temples shown in this chapter. All right, so write first one, PYRAMIDAL, pyramidal शेप. ओके, पिरामिड के आकार के मंदिर होते थे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े और देखे. ओके, एंड सेकंड स्टूडेंट्स, इमेज ऑन द वॉल्स, और इनमें क्या होती थी, इनकी दीवारों पर प्रतिमाएं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी रहती थी. इमेज ऑन दी वॉल्स. ओके, इमेज ऑन दी वॉल्स. अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें तो यहाँ पे पिरामिडल शेप होता था, और जो आजकल के मंदिर होते हैं वे पिरामिडल शेप में नहीं बल्कि ट्रायंगुलर शेप में होते हैं. ओके, सो राइट डाउन TRIANGULAR, triangular in shape. Okay, in shape, SHAPE. Okay, with apex and base we can say. Okay, and second one,
हेयर इमेज ऑन द वॉल्स एंड हेयर नो इमेज ऑन द वॉल. ओके, आजकल मंदिरों की दीवारों पर कोई मूर्ति नहीं बनी होती है, ओनली सिंपल वॉल होती है. ओके, नो इमेजेस on the walls. Okay, no images on the walls. Third one, students, it's a settlements and land nearby. जो हमने चैप्टर में पढ़े थे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में, तो उसमें जो घर होते थे मंदिर के आसपास ही होते थे, उनमें पुरोहितों के घर होते थे और मंदिर के अन्य पदाधिकारियों के घर होते थे और अन्य वर्कर्स के घर वहाँ पर होते थे. ओके, सो राइट डाउन settlements, settlements. Okay, settlements and land, land, and land nearby, nearby. Okay, and nearby. And here if we will compare with temples in a neighborhood or in present day, so no such settlements and land nearby. Okay, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि उस मंदिर के आसपास घर ही हों. ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी सिटी के जो मंदिर हैं वहाँ पे, अगर जो दूर मंदिर स्थित है वहाँ पर कोई भी आसपास पर सेटलमेंट नहीं होता है. ओके, सो नो सच सेटलमेंट्स, no such settlements, and land nearby, and land nearby. All right, and next, students, several specialists priced. Okay, priest, garland makers, sweepers and cook etc. तो कई सारे मंदिरों में रहने वाले स्पेशलिस्ट लोग होते थे जो स्पेशली मंदिर के लिए ही काम करते थे, जिसमें हार बनाने वाले, गार्लैंड मेकर, प्रेस्ट, पुजारी, स्वीपर, सफाई कर्मचारी और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाने वाले लोग भी वहाँ पर होते थे, जस्ट लाइक कुक. ओके, सो राइट डाउन several, several, several specialist, specialists. Okay, several specialist, just like priest, priest, purohit. Okay, garland maker, garland, garland maker, maker, garland maker, हार बनाने वाले, sweeper, 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 and students, sweeper and yes, of course, cook etc. Okay, sweeper and cook etc. All right, and here only placed other temporary professions. Okay, सो हेयर अभी हम आजकल के मंदिरों की बात करें तो वहाँ पे गार्लैंड मेकर या स्वीपर या कुक नहीं होते, केवल वहाँ पे मुख्य रूप से पुरोहित होते हैं. अदर अगर काम करना होता है तो किसी को टेम्परेरी बेस पर काम करवाया जाता है. ओके, जो हमारे आजकल के मंदिर हैं आसपास के. सो राइट डाउन ओनली प्रेस्ट, PRIEST. तो मंदिरों में अभी केवल ब्राह्मण की, पुरोहित की, पुजारी की आवश्यकता होती है. उसके अलावा जो अन्य लोग होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं. ओके, अदर टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी professions, PROFESSIONS. Okay, other temporary professions. all right, now next is worship of gods. अभी हम similarities की बात करेंगे स्टूडेंट्स. worship of, तब भी मंदिरों में हम सिमिलरिटी की बात करें तब भी देवी देवताओं की पूजा होती थी और अभी प्रेजेंट डे में भी उन मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है. वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, GODDESSES. Okay, and worship of gods and goddesses. Worship of gods and goddesses. All right, so it's a similarities. And second similarity is domination of Brahmins, and here also domination of Brahmins. Okay, so write down
NATION, डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। तो तब भी डोमिनेशन मीन्स एकाधिकार होता था ब्राह्मण्स का, ठीक है, उनकी सर्वोच्च अधिकार उनका वहाँ पर होता था। और अभी भी ब्राह्मण जो उस मंदिर के ब्राह्मण या पुजारी होते हैं उनको ही डोमिनेट वहाँ पे होता है उनका। ओके राइट, डोमिनेशन ऑफ Brahmins, okay, Brahmanas or Brahmins. All right, so 1, 2, 3, 4 dissimilarity means differences, and here 2 is similarity. All right, students, now next question number 12. Okay, so let's see what's question number 12. Look your book. Here students, question number 12. Okay, as you can see, find out more about taxes that are collected at present. Are these in cash, kind or labor services? All right, so here students we have to find out more about taxes. हमें जो हम कर लेते थे, हम find out more about taxes in present की बात करें, हम पास्ट की बात नहीं करें, हम वर्तमान में आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में जानकारी हमें हासिल करनी है, हमें पता लगाना है। एंड आर दीज इन कैश, काइंड और लेबर सर्विस, और क्या ये जो अब हम कर जमा करते हैं क्या ये कैश के रूप में यानी नकद के रूप में है, या काइंड या किसी वस्तु के रूप में है, और लेबर सर्विसेज यानी किसी श्रम सेवाओं के रूप में है, लेबर सर्विस के रूप में। मतलब हम किस रूप में अभी टैक्स जमा करते हैं, क्या करते हैं, और अगर करते हैं वो कैश में है, काइंड में है, या लेबर सर्विस यानी श्रम सेवाओं के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल राइट आंसर एंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, एंड अगर हम टैक्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर प्रेजेंट टैक्स की बात करते हैं तो टुडे प्रेजेंट डे टैक्सेस कलेक्टेड, ओके, सो मेनी टैक्सेस कलेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स हमारे द्वारा, जस्ट लाइक लैंड टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वाटर टैक्स, एक्सेट्रा। सो मैनी टाइप ऑफ टैक्सेस वी आर कलेक्टिंग। Okay, all right students, so write first question number 12. Okay, so write down question number 12. Okay, find out more about taxes. All right, question number 12. Find out more about taxes, TAXEX, taxes that are collected, COLLECTED, okay, that are collected at present. All right, are these in cash, kind or LABOUR, or labor service, SERVICES. All right, so find out more about taxes that are collected at present. Are there in cash, kind of labor services? Okay, so students, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है, और हमें यह बताना है कि क्या ये नकद के रूप में, वस्तु के रूप में, या श्रम सेवाओं के रूप में हम जमा करते हैं। ओके, सो राइट डाउन आंसर स्टूडेंट्स। आंसर 12. ओके, taxes collected, TAXES, okay, taxes collected, COLLECTED, taxes collected at present, हम जो टैक्स अभी प्रेजेंट में जमा करते हैं उनके बारे में बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस वी कलेक्टेड नाउअडेज, जस्ट लाइक नंबर 1 लैंड टैक्स, ओके, LAND, लैंड and tax, land tax. Number 2
वेल्थ टैक्स भी हम जमा करते हैं, WEALTH, वेल्थ टैक्स। नंबर 3 वैट, ठीक है, वैट भी हम जमा करते हैं, आपने सुना होगा मैनी टाइम। वैट हम इसको करेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, VAT लिखिए, ओके, इसको आप VAT लिखिए, बिकॉज VAT वैल्यू एडेड टैक्स, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ, वी कैन राइट वैल्यू एडेड टैक्स। ऑलराइट, ये किस में लगाया जाता है? सामानों में लगाया जाता है, जो हम मार्केट से सामान खरीदते हैं उसमें लगता है टैक्स। एंड नेक्स्ट इज एजुकेशन टैक्स भी हम जमा करते हैं, EDUCATION, एजुकेशन टैक्स भी हम जमा करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा बिजली का जब हम बिल जमा करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी अलग से रहता है। ओके, सो राइट डाउन टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, ओके, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकम टैक्स, जितनी हमारी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा करना होता है। ओके, सो राइट डाउन इनकम टैक्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज सेल टैक्स, ओके, जो भी हम बिक्री करते हैं, जितने भी व्यापारी जो बिक्री सामान करते हैं उसे सेल टैक्स बोला जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट सेल टैक्स, एंड आफ्टर दैट वाटर टैक्स, WATER, वाटर टैक्स। हम जो पानी का वाटर बिल पे करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी वाटर टैक्स मेंशन रहता है, एंड वी हैव टू सबमिट सम अमाउंट इन वाटर टैक्स। ओके, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स सर्विस टैक्स ऑल्सो, अगर हम सर्विस कर रहे हैं, जो भी हमारी सर्विस होती है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी सैलरी में कुछ सर्विस टैक्स हमें जमा करना होता है, सर्विस टैक्स। ओके, एंड एक्साइज टैक्स भी होता है बेटा, एक टैक्स, एक्साइज, EXCISE, एक्साइज टैक्स। सो हियर आर सो मैनी टैक्सेस वी हैव रिटन, ओके, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ और टैक्सेस होते हैं, एंड दीज टैक्सेस आर जनरली इन कैश। आप सभी को मालूम है, जैसे आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप जमा करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, जब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाते हैं तो वो अमाउंट, रुपीज़ अमाउंट साथ लेकर जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें किस में जमा होती हैं? दीज टैक्सेस आर जनरली इन कैश। आजकल डिजिटल बैंकिंग है स्टूडेंट्स, तो वे अपने कार्ड से भी जमा करते हैं, बट वो कार्ड पे भी क्या है, कैश पे ही होता है। ओके, सो राइट, these taxes are THESE, these TAX, these taxes are generally GENERALLY, generally in cash, CASH. Okay, so students, these taxes are generally in कैश। तो ये जो जितने भी टैक्स हमने यहाँ पर देखे, उन टैक्स को मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी। आई विल रिपीट अगेन, यू लिसन केयरफुली। टैक्सेस कलेक्टेड एट प्रेजेंट, तो ये सारे टैक्सेस जो होते हैं, ये जो भी कर हैं, इनको हम नकद में जमा करते हैं, हमारे पेरेंट्स इनको नकद में जमा करते हैं, ठीक है। ये कोई लेबर सर्विस के रूप में नहीं जमा होता, या कोई अन्य वस्तु के रूप में नहीं जमा होता, बल्कि ये सारी चीज़ें, सारे टैक्स जो है, हम इसको पेमेंट में जमा करते हैं, मीन्स नकद पैसे जमा करके हम इस टैक्स का भुगतान करते हैं। और वो टैक्सेस क्या हैं जो आजकल प्रेजेंट में लिए जाते हैं? लैंड टैक्स, ओके, जो ज़मीन में टैक्स लिया जाता है, जब कोई लैंड ऑनर अपनी ज़मीन को बेचता है या दूसरा उस ज़मीन को खरीदता है, तो उसको कुछ लैंड टैक्स जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ओके, ऐसी वेल्थ टैक्स, जितनी भी आपकी वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ टैक्स जमा करना होता है। ओके, अभी स्टूडेंट्स इसमें हाउस टैक्स नहीं लिखा है, हाउस टैक्स भी एक हमारा जमा होता है। ओके, तो हमारा घर कहाँ पर है, किस एरिया पर है और कितना बड़ा हमारा घर है, उसके अकॉर्डिंग भी
हमें, जिसे हम भवन कर बोलते हैं इन हिंदी, तो वो भी टैक्स एक होता है, उसे भी हमें हमारे सिटी के नगर पालिका या नगर निगम को हमें जमा करना होता है. ओके, सो वेल्थ टैक्स, वैट, एंड फुल फॉर्म ऑफ वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स. जो हम सामान मार्केट से खरीदते हैं तो जो व्यापारी वर्ग होता है, मर्चेंट, वे इस टैक्स को देता है और वो इस टैक्स का अमाउंट भी हम उन सामानों पर ऐड करके देता है जो उसे हम खरीदते समय देते हैं. ओके, ऐसे स्टूडेंट्स एजुकेशन टैक्स, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वाटर टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, एंड these all taxes are generally in cash. All right students, now question answer is completed here. Okay, second chapter's question answer completed students. Now tomorrow we will start chapter number 3, the Delhi Sultans. Okay, so tomorrow I will be back with this chapter number 3. Till then students, you read, revise, okay, and learn question answer. All right, take care, bye bye.